Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello, good morning students. This is Sunil Prajapati, your maths teacher. Students, in today's lecture we will discuss about the exercise 1.4 question number 2, and in this question we have given that verify that a divided by b plus c is not equals to a divided by b plus a divided by c. Okay, दैट मीन्स हमको वेरीफाई करना है कि ये वाला और ये वाला जो पोर्शन है वो इक्वल नहीं है. दैट मीन्स LHS एंड RHS इज नॉट इक्वल. फॉर each of the following values of a, b and c, we have given some values of a, b and c, and for those values we have to prove that, we have to verify that the LHS part and the RHS part, means right hand side part and left hand side part, is not equal. Okay, so first of all we will take LHS. Okay, in LHS we have given a divided by b plus c and solve it. First of all we have to put the value of a, b and c, and the value of a is 12. Then the value of b is minus 4 and the value of c is 2. Okay, now we have to solve this bracket first. Okay, then 12 as it is आप लिख देंगे यहाँ पर minus 4 and plus 2. minus 4 and plus 2 will be minus 2. ये आपको पता है, हमने ऑलरेडी प्लस माइनस सीख लिया है कि नेगेटिव पॉजिटिव नंबर होता है, डिफरेंट साइन है तो आपका हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 4 minus 2 will be 2 and the answer should have the sign of greater number, that means minus sign यहाँ आएगा. Okay, then 12 divided by 2 minus 2. 12 में आप 2 से डिवाइड करेंगे, then answer will be 6, and 12 is a positive integer and 2 is a negative integer. That means both the integers have different sign, so our answer should have a negative sign. So this is the LHS part, and the LHS solution is minus 6. The value of left hand side part is minus 6. Now on the right hand side means RHS, a divided by b plus a divided by c. Okay, and the value of a is 12 divided by the value of b is minus 4 plus the value of a is 12 divided by the value of c is 2. Okay, let's solve it. First of all we have to divide 12 by 4. Okay, 12 में आप 4 से डिवाइड करेंगे, then your answer will be 3, but 12 is a positive integer and 4 is a negative integer, then our answer will be a negative integer. Okay, plus 12 divided by 2 will be 6, because यहाँ पर दोनों इंटीजर कैसे हैं आपके पॉजिटिव है, तो आपका आंसर भी क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर ही होगा. Now solve these numbers. Minus 3 and plus 6, both the integers have different sign, that means आपको subtract करना होगा. 6 minus 3 will be 3 and the sign will be of the greater number, that means greater number आपका 6 है और उसकी साइन प्लस है, तो आपका आंसर भी क्या होगा, प्लस होगा. That means आपका राइट हैंड साइड पार्ट जो है उसका आंसर क्या आ गया है, 3 आ गया है. So LHS is not equals to RHS because left hand side का जो वैल्यू थी वो -6 थी, राइट हैंड साइड की वैल्यू 3 है, तो आपका दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है और इसलिए हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड.
इन द सेम वे आप आगे और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, बस आपको वैल्यू जो दी है ए बी और सी की, वो वैल्यू आपको पुट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करना है, राइट हैंड साइड सोल्व करना है। अगर इक्वल आता है तो यहाँ पर आप इक्वल्स टू का साइन रखेंगे, और वैल्यू इक्वल नहीं है तो आप नॉट इक्वल्स टू कर देंगे। एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट फिल इन द ब्लैंक्स, मींस आपको कुछ ब्लैंक्स दी हैं और ब्लैंक्स जो आपको क्या करनी है यहाँ पर फिलअप करनी है। ओके, तो आप जो है ब्लैंक को कैसे फिलअप करेंगे, तो डिवीजन है सभी ब्लैंक्स में, तो आपको डिवीजन जो है यूज करना होगा, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था। ओके, तो in the first question we have given that 369 divided by dash is equals to 369। अब आंसर आपका 369 है, किसी भी नंबर में आप डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर चेंज होना चाहिए, बट एक नंबर ऐसा है जिससे डिवाइड करते तो आंसर चेंज नहीं होता है, दैट इज 1। मींस यहां पर क्या होगा, 1 होगा, और साइन ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस ये जो आंसर यहां पर जो ब्लैंक में जो आएगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज दोनों नंबर पॉजिटिव है तो उनका आंसर पॉजिटिव आता है। ठीक है, या दोनों नेगेटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं -75 एंड आंसर इज -1। अब आंसर 1 कब आएगा, जब आप 75 में 75 का डिवाइड करेंगे तभी आपका आंसर 1 आएगा। अगर आपको डायरेक्टली ऐसे ना आए तो आप क्या कर सकते हैं, 1 का डिवाइड 75 में कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ब्लैंक में क्या है। ठीक है, सो 75 में आप किसका डिवाइड करेंगे कि 1 आएगा, तो 75 का। ओके, एंड और आंसर इज नेगेटिव, दैट मींस दोनों जो नंबर है उनमें से एक नेगेटिव है और सेकंड वाला पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, सो दिस 75 इज अ नेगेटिव इंटीजर, दैट मींस ये वाला जो 75 है वो आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। In the next question we have given -206 divided by blank is equals to 1। बिल्कुल सिमिलर इसके जैसा क्वेश्चन है, यहां पर भी फर्स्ट जो आपका आंसर है, फर्स्ट जो नंबर है वो क्या है, नेगेटिव है। ओके, तो आप किसका डिवाइड करेंगे, 206 में आप 206 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसे नहीं आए तो आप 1 का डिवाइड 206 में कर सकते हैं, बट यहां पर इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका आंसर -1 था और इसका आंसर +1 है। आंसर प्लस में कब होगा, या तो दोनों नंबर आपके क्या हो, पॉजिटिव हो, या दोनों ही नंबर आपके क्या हो, नेगेटिव हो, तभी आपका आंसर जो है वो प्लस में आता है। दैट मींस ये अगर नेगेटिव नंबर है तो ये 206 भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, जिससे कि हमारा आंसर क्या है, पॉजिटिव हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर इज -87। ओके, -87 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 87। इसका मतलब हमको डिवाइड किससे करना होगा, 1 से करना होगा, बिकॉज आप किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, 87 होगा। ठीक है, सेम नंबर आता है आंसर में आपका, बट ये नंबर नेगेटिव है और आंसर पॉजिटिव है, दैट मीन्स दोनों ही नंबर आपके क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, जिससे कि हमारा आंसर क्या आए, पॉजिटिव नंबर आए। ओके, बिकॉज दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, या दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आता है। ओके स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू -87। दैट मींस आपको एक नंबर है उसमें 1 का डिवाइड आप करते हैं तो आंसर आपका -87 आता है। ठीक है, तो आप 1 का डिवाइड किसी भी नंबर में करेंगे तो सेम नंबर आता है, आंसर में सेम नंबर आता है, दैट मींस हमने 1 का डिवाइड जो है वो 87 में किया होगा, तभी तो आंसर 87 आ रहा है। बट आंसर हमारा नेगेटिव है, दैट मींस दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव है, क्योंकि आंसर नेगेटिव आपका तभी आएगा जब दोनों में से कोई एक नंबर आपका नेगेटिव होगा। 1 हमको ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है, दैट मींस हम क्या करेंगे, इस 87 को नेगेटिव बना देंगे। ओके, then in the next question f dash divided by 48 is equals to -1। यहां पर भी आंसर आपका क्या आता है, 1 आता है। 48 का आप डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर में और आपका आंसर 1 कब आएगा, जब आप 48 में ही 48 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऐसा।
ओके, सो आवर आंसर विल बी 48, बट आंसर हमारा नेगेटिव है। दैट मीन्स यहां जो नंबर है दोनों में से एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए। 48 जो हमको दिया हुआ है दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स ये जो आपका नंबर होगा वो क्या होगा, एक नेगेटिव इंटीजर होगा। ओके, देन नेक्स्ट है जी नंबर क्वेश्चन, और इसमें आपको क्या दिया हुआ है, 20 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल्स टू -2। ठीक है, कि 20 में आप किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका -2 आएगा। थोड़ी देर के लिए साइन भूल जाइए, आपको समझ में आया 20 में आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर 2 आएगा। कैसे पता चलेगा आपको, वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे, 2 का डिवाइड 20 में करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 2 का डिवाइड आप 20 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 10। ओके, देन आंसर हमारा नेगेटिव नंबर है। ओके, दैट मीन्स दोनों में से कोई एक नंबर आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ओके, तो और आंसर विल बी -10, बिकॉज 20 तो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है, और अगर आप ये भी पॉजिटिव रखेंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, बट हमारा आंसर किसमें दिया हुआ है, नेगेटिव नंबर, दैट मीन्स दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव है तो इसको हम क्या कर देंगे, नेगेटिव बना देंगे। देन नेक्स्ट, आप किसी नंबर में -4 का डिवाइड करते हैं तो -3 आपका आंसर आएगा। साइन को भूल जाइए, आप 4 का डिवाइड किसमें करेंगे कि आंसर 3 आएगा, नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं, आप 4 का और 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12, तो वो नंबर आपका 12 होगा। ठीक है, यहां पर जो नंबर है, फर्स्ट प्लेस पर जो नंबर है, अगर वो आपको नहीं पता चलता है तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 87 था, तो आपको अगर ये नहीं मालूम है तो आप 1 का और 87 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस पर अगर कोई नंबर आपको नहीं पता चलता है तो आप लास्ट 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 3 जा आपका आएगा 12। ओके, दैट मीन्स यहां जो नंबर होगा वो है 12। अब आंसर जो है हमारा वो नेगेटिव है, दैट मीन्स दोनों में से कोई एक नंबर जो है वो आपका नेगेटिव होना चाहिए। -4 नेगेटिव नंबर है तो ये आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, और इस तरह से आप ब्लैंक जो है फिलअप कर सकते हैं।